Hi guys, so in today's video we are gonna talk about Satin Credit Care. So Satin Credit Care देखिए ना मतलब they are a microfinance lender और they are present in around 21 states I guess. They are present in around 27 states और their AUM size is around 11,700 crore. ठीक है. Whereas the top states, it is top states मतलब it contributes around 56% to the AUM. So you look at top four states are UP, Bihar, West Bengal and Madhya Pradesh. And मतलब ये टाइम का ये लोग का AUM growth was around 23% YOY and the disbursement growth was 0%. तो मतलब सबका मतलब in the microfinance space now all companies are facing problems like for the collections, the collection efficiency has gone down, the asset quality is also uh, deteriorated. So they have around now they have around 1447 branches, which is up 10% YOY, and their return on assets is around 3.96% versus 4.27% YOY. And their return on equity ROE is around 17.16 versus 20.97 YOY. मतलब ये भी डिक्रीज हो गया है. फिर their leverage ratio is what the amount they have taken on the cost of equity. ठीक है. तो let's assume that your ROE is calculated how ROA multiplied by leverage. So ROA was around 3.96 and leverage is 3.2. 3.96 multiplied by 3.2, you get the ROE, return on equity, which is around 17.616. Then we will look at their we look at now they have two subsidiaries. One is Satin Housing Finance and the other one is Satin FinServ. ठीक है. So Satin Housing Finance now they have a size of around 770 crores and they are present in around 12 states. Satin Housing Finance, they are a subsidiary. ठीक है. And Satin FinServ, they are size is around 450 crores and this time their growth was around 41%. And Satin Housing Finance has around 50% AUM growth, the YOY. फिर ये लोग का जो एवरेज टिकट साइज है ना मतलब दैट इज अराउंड 49,000 करो. सो 49,000 मतलब if you are taking loan from the Satin Credit Care, the average customer ticket size, the average loan amount is around 49,000 करो. तो अभी गाइडेंस में ये लोग ने बोला है कि द गाइडेंस फॉर द AUM ग्रोथ विल बी अराउंड 20% फॉर FY25. And but in the last quarter they had told that it will be 25% plus, so they have reduced the guidance. अब ये तो खराब है कि भाई गाइडेंस कम कर डाला है. तो पूरे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, इसीलिए वो होगा. फिर दूसरा देखते हैं कि they have opened around they have opened around 70 to 80 branches in this quarter, and they are going to open around more 230 branches, 250 branches in the remaining 3 quarters. So that sums up to around 300 branches for the full year. तो मतलब ब्रांच ग्रोथ रेट भी ये लोग का अराउंड 7-8% इतना हो गया. फिर ये लोग का ना मतलब ये दे हैव अ रेगुलेटरी बॉडी. सो द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री इज बीन रेगुलेटेड बाय सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन SRO एंड द नेम इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क्स. ठीक है, MFI. तो मतलब दे हैव टोल्ड दैट if a customer is taking loan, तो मतलब he cannot take a loan of from more than 4 lenders. मतलब पहले से 3 लोग से लोन ले लिया और चौथे लोन बस, उसके बाद नॉट मोर देन 4. ठीक है. और वो लोग का जो पूरा डेट होता है, कस्टमर का जो लोन का अमाउंट होता है, दैट कैन नॉट बी मोर देन अराउंड 2 lakhs. मतलब लेट्स से इफ यू हैव टेकन अ लोन ऑफ 1,90,000 फ्रॉम अ बैंक, so only you can take the remaining 10,000 only from another bank or that same company. उसके ऊपर you cannot take the loan amount. और ये लोग का जो क्या बोलते हैं, कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज व्हाट इफ यू आर अर्निंग अराउंड 100 रुपीज़. ठीक है. एंड आपका कॉस्ट कम्स आउट टू अराउंड 30 रुपीज़ 40 रुपीज़. योर कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज 40%.
तो ये लोग का ये टाइम का कॉस्ट टू इनकम देखेगा ना, इट वाज अराउंड 41% वर्सेस 48% वाई। और ये लोग ने मतलब खाली एयूएम का ही गाइडेंस दिया, मतलब कुछ दूसरा गाइडेंस ही नहीं दिया। बोले कि दे विल गिव इट इन द नेक्स्ट क्वार्टर। अभी प्रॉब्लम हो गया ना, तो इसीलिए दे हैव रेस्ट्रिक्टेड देमसेल्फ बाय ओनली गिविंग द गाइडेंस फॉर द एयूएम ग्रोथ दैट इज अराउंड 20%। और दूसरा गाइडेंस ये था कि जो ये लोग का जो सब्सिडरी है ना, सेटिंग हाउसिंग फाइनेंस, ये लोग का अभी अराउंड साइज इज अराउंड 770 करोड़, ठीक है। एंड इट विल बी अराउंड 5,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। मतलब अराउंड 4 5 टाइम्स हो जाएगा इन 3 to 4 years। मतलब ये भी छोटा सा बेस है, बेस इज स्मॉल, दैट इज वाई द ग्रोथ इज लुकिंग वेरी गुड। फिर ये लोग ने बोला है कि they will enter 2 new states, they have entered 2 new states, which is Arunachal Pradesh and Telangana, and they have slowed down the disbursements in the regions of Rajasthan and Odisha, ठीक है। और मतलब ये लोग का ना कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टॉप 4 स्टेट इज वेरी वेरी मच, इट इज़ अराउंड 56%। मतलब थोड़ा भी प्रॉब्लम हो गया ना वो रीजन्स में, इट विल इम्पैक्ट देम अ लॉट। दूसरा दूसरा देखेंगे ना, दूसरा तो मतलब ये लोग जो रेट पे वो लोग को जो यील्ड है ना, यील्ड होता है अपना द रेट एट विच यू लेंड टू द कस्टमर्स। तो यील्ड इज अराउंड 22% वर्सेस 20.48% वाई। और निम्स था कितना, निम्स था 13% वर्सेस 13.78 वाई। हाँ मतलब ये लोग का ना, मतलब पूरा डिविजन्स में ना 88% ऑफ द बुक इज इनटू माइक्रो फाइनेंस। मतलब ये जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप होता है, वो जो मतलब गांव के औरतों को साथ में बुलाते हैं और फिर लोन देते हैं। मतलब वो इनकम जनरेटिंग लोन्स होता है, मतलब वो लोग इनकम जनरेट करने के लिए दे गिव लोन्स टू द वुमेन्स। अब दूसरा तो कुछ है नहीं ये लोग का। मतलब ये लोग का अभी जब भी डिसबर्समेंट का ग्रोथ आएगा, क्योंकि कभी भी है ना, मतलब जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है ना माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले कंपनी कलेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करता है और डिसबर्समेंट को कम कर डालता है। कभी भी ऐसा कोई भी इशू हो जाए कंपनी में, तो दे फोकस मोर ऑन द कलेक्शन साइड देन रादर ऑन द डिसबर्समेंट। तो जब अभी ये लोग का अभी रिकवरी हो जाएगा, मतलब प्रॉपर, दे हैव टोल्ड दैट इट विल टेक more 3 4 months to recover from the what we say the asset quality performance। तो मतलब तभी देखना पड़ेगा। दूसरा तो कुछ है नहीं, मतलब एयूएम का गाइडेंस कम कर दिया है। निम्स का भी अराउंड पहले बोला था 12.1 to 12.5, अभी ये लोग ने अभी ये टाइम बोला ही नहीं गाइडेंस में। और आरओई मतलब ये लोग का 17% है अभी, और वर्सेस कितना था, 21% जितना था आरओई। मतलब वो भी मतलब बहुत इम्पैक्ट हो गया उसमें, क्योंकि वो लोग का क्या प्रोविजंस बढ़ गया था। तो प्रोविजंस क्या होता है, मतलब आप है ना, मतलब आपको पहले से प्रोवाइड करके रखना पड़ता है एक रीजन में। मतलब लेट से यू आर प्रोवाइडिंग 100 रुपीज़ इन अ स्टेट, ठीक है। और आपको लग रहा है कि ये तो मतलब मैं इधर पहले से मतलब 3 4 साल से कर रहा हूँ, लोन दे रहा हूँ, तो उतना कुछ है नहीं। मतलब इट इज़ अराउंड 10, अज्यूम करो 10%, ठीक है। तो अभी आप व्हेन यू आर एंटरिंग न्यू स्टेट्स ना, तो मतलब आपको तो आइडिया नहीं है, मतलब आपने ठीक है एनालाइज तो किया होगा, बट तो भी तो मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करके रखना पड़ता है। तो क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है, प्रोविजंस डिवाइड बाई टोटल एसेट, प्रोविजन डिवाइड बाई टोटल एसेट्स। तो प्रोविजंस ऊपर हो गए तो योर क्रेडिट कॉस्ट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। अभी क्रेडिट कॉस्ट का प्रोविजंस का पैसा कम किधर से आता है, इट कम्स फ्रॉम द पैट। तो पैट भी डिक्रीज हो गया तो आरओई भी इम्पैक्ट होता है। आरओई क्या होता है, पैट डिवाइड बाई नेटवर्क। तो पैट डिक्रीज हो गया तो आरओई भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता है। और दूसरा तो ये हीट वेव और ये इलेक्शन में सब लोग का मतलब कोई घर से निकल ही नहीं रहा था, इतना गर्मी था। तो छोड़ नेक्स्ट वीक जाएगा लोन देने, अभी नहीं जाना है, ऐसा हो गया प्रॉब्लम। और इलेक्शन में भी कोई नहीं गया। ठीक है, देखना पड़ेगा, ट्रैक तो करना पड़ेगा। गाइड अभी अगर गाइडेंस इम्प्रूव करता है तो अच्छा है। देखते हैं अभी लोग का, अभी नेक्स्ट क्वार्टर में बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू।